परम आदरणीय मुख्य अतिथि भारत गणतंत्र की राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे विशिष्ट अतिथिगण छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल श्री रामेन डेका जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ के माननीय स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर जॉर्ज ए डिसूजा जी, आप सभी का इस मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आदरणीय संकायगण, अधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण, अभिभावकगण और प्रिय छात्रों, यह दीक्षांत समारोह के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी का हृदय के अंतःकरण से स्वागत करती हूं। मैं लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल, कार्यपालक निदेशक एम्स रायपुर से सविनय अनुरोध करती हूं कि कृपया दीक्षांत समारोह के कार्यक्रम को आरंभ करने की अनुमति प्राप्त करें। I request Professor George D'Souza, President All India Institute of Medical Sciences Raipur, to kindly declare the second convocation 2024 open. I declare the second convocation of AIIMS Raipur open. Thank you, sir. I now invite the Institute President, Professor George A. D'Souza, who is also Dean, St. John's Medical College, Bangalore, and a distinguished academician, to deliver his welcome address. Respected President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable Governor of Chhattisgarh, Sri Ramen Deka ji, Chief Minister of Chhattisgarh, Sri Vishnu Deo Sai ji, Health and Education Minister of Chhattisgarh, Sri Sham Bihari Jaiswal ji, esteemed dignitaries, Lieutenant General Ashok Kumar Jindal, Director AIIMS Raipur, revered faculty members, and my dear graduating students. It is indeed a matter of great significance and pride for me to welcome you all on this magnificent and captivating second convocation ceremony of AIIMS Raipur. At the outset, I would like to congratulate all the graduating students of AIIMS Raipur for making us proud. Your journey to reach this pinnacle of success has been replete with numerous academic challenges, tireless endeavors, and unwavering dedication. Your achievement is also a testimony to the industrious and painstaking efforts of your parents and teachers. This achievement of yours will certainly enhance their honor and dignity manifold. I would also like to thank the dedicated faculty of our institute for making this happen. AIIMS Raipur was established in 2012 with an aim of imparting world-class medical education, conducting cutting-edge research, developing state-of-the-art medical facility, and providing excellence in patient care. During these years, we have made unprecedented progress to be recognized as one of the top AIIMS and top medical colleges in the country. Today, AIIMS Raipur epitomizes excellence, spawning an aura of innovation, research, and development. This convocation is a manifestation of our illustrious achievements. It is the outcome of the resolute and relentless effort of our faculty members who have guided and mentored you. To achieve this feat, our students have shown exceptional commitment and persevered with phenomenal willpower. The invaluable cooperation of the staff and personnel of the Institute has immensely contributed to its success. Through strength of mutual cooperation and understanding, the AIIMS Raipur family has evolved itself into a vibrant educational institution, which is leading the way in the field of medical education and healthcare. Dear graduates, students, as you now get ready to take on new responsibilities, shoulder various obligations in medical fields, you need to remain alert and curious at the same time. The medical world is changing by the day, and hence arises the need of continuous learning. You have to be ready to seize every opportunity that
educates in new skill and knowledge. The practice of medicine expects a lifetime commitment to learning. It also will throw new ethical challenges which you need to navigate. The virtues of honesty, integrity, compassion and empathy that you have imbibed at AIIMS Raipur should guide you in your journey as healthcare professionals. I am highly overwhelmed to state that from this date you shall be ambassadors to the mission of AIIMS Raipur to provide compassionate care for the underserved. You carry with you not only the knowledge and skills, but also the important responsibility to make a difference in society. Whether you choose to serve in rural areas or urban centers, in hospitals or research centers, please bear in mind that your work has the power to change lives and shape the future of healthcare in India. I urge you to make the purpose of your life meaningful and to serve humanity. के अवसर पर हुआ है। यह कितने गौरव की बात है कि इस आदिवासी प्रदेश में स्थित मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षण देने वाली इन महान संस्थाओं की प्रतिभाएं आपकी उपस्थिति में दीक्षा पूरी कर रही हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में देश की लगभग सभी ख्यातनाम संस्थाएं स्थित हैं। ये संस्थाएं राज्य के भविष्य को रास्ता दिखाने वाली मसालें हैं। इनमें से ज्यादातर संस्थाएं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की रुचि और पहल पर छत्तीसगढ़ को मिली है। आदिवासियों और विकास की दौड़ में पिछड़ गए लोगों के प्रति यह प्रधानमंत्री जी की आत्मीयता और इन वर्गों के विकास के लिए उनकी चिंता का ही यह परिणाम है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर के साथ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। वे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता हैं। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने रायपुर में एम्स खोलने का प्रस्ताव रखा था और जगह का चयन भी उन्होंने ही किया था। यह एम्स उन्हीं की चुनी हुई जगह पर निर्मित है। यह संस्थान छत्तीसगढ़ के साथ साथ महाराष्ट्र और ओडिशा के लोगों के लिए भी वरदान है। इस संस्थान ने अपनी व्यवस्था और विशेषज्ञता के लिए पूरे देश में नाम कमाया है। जो छात्र छात्राएं आज यहाँ माननीय राष्ट्रपति महोदया के हाथों दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आज आप लोग अपने ज्ञान और कुशलता के प्रमाण पत्र के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी ग्रहण कर रहे हैं। मुझे यह उम्मीद है कि अपने पेशे के दायित्वों को पूरा करते हुए आप लोगों को हमेशा यह क्षण याद आएगा और माननीय राष्ट्रपति जी की उपस्थिति आप लोगों को विकास की दौड़ में पीछे छूट गए लोगों की सेवा प्राथमिकता के साथ करने की हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार का भी यही लक्ष्य है। इसी दिशा में हम भी काम कर रहे हैं। राज्य में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की भर्तियां बड़े पैमाने पर की जा रही हैं। अस्पताल भवनों को बेहतर बनाया जा रहा है। आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रदेश में संचालित शासकीय मेडिकल कॉलेजों में भी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर और सिम्स बिलासपुर में भवन विस्तार तथा सुविधाओं का विकास शुरू कर दिया गया है। प्रदेश के 4 नए मेडिकल कॉलेजों के भवनों के निर्माण के लिए 1020 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रावधान प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में भी कराने का निर्णय लिया है। इससे विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों के लिए मेडिकल शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ को मध्य भारत का मेडिकल हब बनाने में अपना योगदान देने के लिए हमारे शासकीय अस्पताल भी पूरी तरह तैयार हैं। हम राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं को दुर्गम क्षेत्रों के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर मैं सभी छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों और प्राध्यापकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं पुनः माननीय राष्ट्रपति महोदय को
उनके आगमन के लिए हृदय से पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके सद्भावपूर्ण शब्दों के लिए हार्दिक धन्यवाद। श्री रामेन डेका जी 1977 से विभिन्न पदों पर सक्रिय रूप से कार्यरत एक वरिष्ठ एवं अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। अपार हर्ष के साथ मैं छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल माननीय श्री रामेन डेका जी का स्वागत करती हूं और अनुरोध करती हूं कि वे अपना संबोधन दें। Namaskar. Madam Draupadi Murmu ji, Honorable President of India, Sri Vishnu Dev Chai, Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Sri Shyam Bihari Joyshwal, Honorable Health Minister Chhattisgarh, Professor George A.D. D'Souza, President. प्रतिभावान विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, आप सबको मेरा नमस्कार, जय जोहार। राष्ट्रपति के रूप में देश के सेवा करते हुए मुझे कोई समारोह में भाग लेने का अवसर मिला। शिक्षा संस्थान में जाकर मुझे अधिक प्रसन्नता होती है। मुझे संतोष का अनुभव होता है कि हमारे देश का भविष्य आप जैसे प्रतिभावान युवाओं के हाथों में सुरक्षित है। आज उपाधि एवं पदक प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ एवं उनके स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। जिन अभिभावकों और शिक्षकों के समर्थन तथा सहयोग से आपने ये रास्ता तय किया है, वो भी बधाई के पात्र है। प्रिय विद्यार्थियों, एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से शिक्षा प्राप्त करना सौभाग्य है। यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके आपकी प्रतिभा और विकसित हुई होगी। मेडिकल प्रोफेशनल्स का कार्य अत्यंत जिम्मेदारी भरा है। आपके निर्णय अनेक बार जीवन रक्षा से जुड़े होते हैं। मैं समझती हूँ कि आपको इस जिम्मेदारी का बोध है तथा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह आप पूरी तन्मयता से एवं क्षमता के साथ करेंगे। मेडिकल प्रोफेशनल्स के तौर पर आप प्रायः ऐसे परिस्थितियों से गुजरते हैं जो बहुत चुनौतीपूर्ण होती है। उनका सामना करते लिए आप अपने भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख लेते हैं। भावुकता से मुक्त होकर कार्य करने और संवेदनशीलता की कमी होने के बीच बहुत थोड़ा सा फैसला होता है। दुनिया के अनेक प्रतिष्ठित एवं श्रेष्ठ चिकित्सकों ने मेडिकल प्रोफेशनल्स को मानवीय मूल्यों के साथ काम करने की सलाह देते हैं। उनमें डॉक्टर फ्रांसिस वेल्ड पिवाणी का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। उनका द केयर ऑफ द पेशेंट नामक लेख विश्व के कई चिकित्सा संस्थानों में विद्यार्थियों को पढ़ने की सलाह दी जाती है। इस लेख में उन्होंने लिखा है, एंड आई कोट, द ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज में बी एंटायरली इम्पर्सनल, द केयर ऑफ ए पेशेंट मस्ट बी कम्प्लीटली पर्सनल, अनकोट। मैं समझती हूँ कि जब आपने ये कार्य क्षेत्र चुना होगा तो आपके मन में दया, करुणा और संवेदना के आदर्श रहे होंगे। आपको हमेशा याद रखना है कि ये मानवीय मूल्यों हमको मजबूत बनाते हैं। इसीलिए हमेशा अपने कार्य क्षेत्र में इन जीवन मूल्यों के साथ काम करें। इससे आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी तथा आपका जीवन सार्थक होगा। देवियों और स्वजनों, देश के सभी नागरिकों तो स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। पिछले एक दशक में देशवासियों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आप 17 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक भी लाभान्वित हो रहे हैं।
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधीय परियोजना से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाई उपलब्ध हो रही है। पिछले 10 वर्षों में मेडिकल कॉलेजेस और एमबीबीएस तथा पीजी की सीटों में भी बढ़ोतरी हुई है। नई एम्स भी स्थापित किए गए हैं। एम्स संस्थान कम खर्चों में अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज एवं मेडिकल एजुकेशन देने के लिए जाने जाते हैं। एम्स संस्थानों के साथ देशवासियों को विश्वास जुड़ा हुआ है, इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में लोग दूर दूर एवं एम्स के इलाज करने के लिए आते हैं। जिस डॉक्टर के साथ एम्स का नाम जुड़ा होता है, उसके प्रति मरीजों में सम्मान की भावना बढ़ जाती है। मुझे ये जानकर हर्ष होती है कि एम्स रायपुर भी इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। वर्ष 2012 में स्थापित इस संस्थान ने अपनी कुछ वर्षों की यात्रा में ही बहुत प्रतिष्ठा अर्जित की है। इसके लिए इस संस्थान से जुड़े सभी लोगों को मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि चिकित्सा एवं लोक कल्याण के लिए एम्स रायपुर द्वारा कई कार्य किया जा रहा है। यह संस्थान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ कुपोषण का उन्मूलन करने के लिए कार्य कर रहा है। यहाँ के सिकल सेल क्लिनिक में मरीजों को इलाज प्रदान किया जाता है। सिकल सेल मरीजों की पहचान के लिए जागरूकता शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें आधुनिकतम टेक्नोलॉजीज हमारे जीवन को बहुत तेज गति से प्रभावित कर रही है। सुदूर क्षेत्र के लोग के कल्याण के लिए इन आधुनिकतम टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया जा सकता है। यह वर्ष की बात है कि एम्स रायपुर इस दिशा में प्रयासरत है। मुझे बताया गया है कि एम्स रायपुर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पर काम कर रहा है। इसके माध्यम से दूर दराज के क्षेत्र के डॉक्टरों को आपातकालीन स्थितियों में रियल टाइम मदद प्रदान की जाएगी। एम्स रायपुर द्वारा किए जा रहे इन कार्य से सामुदायिक स्वास्थ्य में सुधार होगा तथा नागरिकों का जीवन बेहतर होगा। मुझे आशा है कि आने वाले समय में ये संस्थान जनहित के कार्यों में और बेहतर होगा। प्रिय विद्यार्थियों, हमने वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा है। आपकी पीढ़ी के द्वारा किए गए कार्य इस राष्ट्रीय संकल्प को सिद्ध करने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। आपको वंचित वर्गों की सेवा के कार्य को प्राथमिकता देनी होगी। जो लोग साधन संपन्न होते हैं उनके पास अनेक विकल्प हो सकते हैं, लेकिन वंचित वर्ग के लोगों की आशाएं आप पर ही टिकी होती है। इसीलिए मेरी आपको सलाह है कि सभी लोगों की, विशेषकर असहाय लोगों की सेवा में आप हमेशा तत्पर रहेंगे। विद्यार्थियों जीवन से पेशेवर जीवन में कदम रखना एक महत्वपूर्ण बदलाव है, लेकिन आप अपने ज्ञान को बढ़ाते रहने का उत्साह हमेशा बनाए रखें। हमेशा कुछ नया सीखने का भावना आपके लिए लाभदायक होगी। अपने कौशल का विकास करते रहें। एम्स के डॉक्टरों और विद्यार्थियों से ये आशा की जाती है कि आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए हमेशा सक्रिय रहना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, मैं और एक महत्वपूर्ण बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। कोई अवसर पर आप तनावपूर्ण वातावरण में सेवा कार्य करेंगे। अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा ना करें, उसका ध्यान रखें। मरीजों में विश्वसनीयता बढ़ाने एवं उनका बेहतर इलाज करने के लिए आपका स्वस्थ रहना तथा स्वस्थ दिखाना अत्यंत आवश्यक है। मैं आशा करती हूँ कि आप जीवन पर्यंत सदाचार एवं अच्छे कार्य से अपने माता पिता, संस्थान एवं देश की कीर्तिमान बढ़ाते रहेंगे। मैं आशा भी करती हूँ कि आप सभी
सफल एवं सार्थक जीवन हेतु आशीर्वाद में भी देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय मुख्य अतिथि जी, आपके इन शब्दों के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। इस गरिमामय सभा का समापन हम राष्ट्रगान से करेंगे। मान्यजनों, आपसे निवेदन है कि राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम में संबोधन आप सुन रहे थे। रायपुर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एम्स एनआईटी का दीक्षांत समारोह, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन आप सुन रहे थे। तो रायपुर से ये तस्वीरें दीक्षांत समारोह की लगातार आपको दिखा रहे हैं और साथ ही द्वितीय दीक्षांत समारोह जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची और साथ ही आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं राष्ट्रपति के। और ये तस्वीरें रायपुर से लगातार हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। एम्स एनआईटी का दीक्षांत समारोह है और यहाँ पर संबोधन को आप सुन रहे थे द्रौपदी मुर्मू के। सीएम विष्णुदेव साय दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे और देखिए बेहद बिजी स्केड्यूल जो है वो आज सीएम विष्णुदेव साय का भी रहने वाला है। कई अन्य कार्यक्रम जिसमें एक एक करके शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय भी। और यहाँ पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।